کبھی سوچا ہے ایک عام سی لڑکی جس کے سپنے بھی اس کی جیب کی طرح خالی ہوں، اس کی زندگی ایک دن ایسی بدل جائے کہ اس کے سامنے خود قسمت بھی حیران ہو جائے۔ زارا کا نام سنتے ہی بستی کے لوگوں کے چہرے پر ایک محبت بھری مسکان آ جاتی تھی۔ وہ ایک سادہ سی لڑکی تھی جس کے پاس نہ دولت تھی نہ کوئی بڑا رتبہ، لیکن اس کے دل میں ایک ایسی گرماہٹ تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ زارا کی ماں امینہ بیگم ایک چھوٹی سی سلائی کی دکان چلاتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں جادو تھا کپڑے سینے کا، لیکن آنکھوں میں تھکاوٹ تھی سالوں کی محنت کی۔ زارا دن بھر مختلف کاموں میں لگی رہتی تھی، کبھی کسی کی دکان پر، کبھی کسی کے گھر میں صفائی کرتے ہوئے۔ شام کو جب وہ گھر لوٹتی تو اس کے پاؤں تھکے ہوئے ہوتے، لیکن آنکھوں میں ایک چمک ہوتی تھی۔ زارا کا سب سے بڑا سپنا تھا اپنی ماں کو ایک اچھا گھر دینا، ایک ایسا گھر جہاں بارش کا پانی چھت سے اندر نہ ٹپکے، جہاں سردیوں میں ڈانسز سے بچنے کے لیے گرم کمبل ہو، اور جہاں ماں کو رات کو کام کی فکر کیے بغیر سکون سے سونے کا موقع ملے۔ لیکن ہر دن کی طرح آج بھی اس کی جیب خالی تھی اور دل میں امید کی ایک چھوٹی سی روشنی جل رہی تھی۔ زارا کی ایک خاص بات تھی، وہ کبھی کسی سے شکو نہیں کرتی تھی۔ چاہے حالات کتنے بھی مشکل ہوں، وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ بستی کے لوگ کہتے تھے زارا کی مسکراہٹ میں شفا ہے، جو بھی اداس ہو اس کے پاس چلا جائے واپس ہنستا ہوا آتا ہے۔ ایک شام جب زارا اپنے گھر لوٹ رہی تھی، آسمان پر سرخ اور نارنجی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے فطرت کسی بات کا انتظار کر رہی ہو۔ اچانک زارا کی نظر گلی کے کونے میں پڑی، وہاں ایک عجیب سی نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا شاید کوئی بجلی کا کھمبا خراب ہو گیا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئی اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہاں ایک لڑکا بیٹھا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس۔ اس لڑکے کے بال گھنے اور آنکھیں گہری سبز تھیں، ایسی سبز جیسے گہرے سمندر کی گہرائی میں کوئی رنگ چھپا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی اداسی تھی جو عام انسانوں کے چہرے پر نہیں ہوتی تھی۔ یہ اداسی صدیوں پرانی لگتی تھی۔ زارا کا دل کہہ رہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن اس کی فطرت نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں مدد چاہیے؟ لڑکے نے آہستہ سے سر اٹھایا اور زارا کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں کچھ تھا جو زارا کے دل کو چھو گیا، ایک انجانا درد، ایک خاموش تڑپ۔ اس نے دھیرے سے کہا، مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، میں اپنی دنیا سے کھو گیا ہوں۔ زارا نے سوچا یہ کون ہے، اس بستی میں تو ایسا کوئی لڑکا نہیں رہتا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا اور اس لڑکے کو دے دیا۔ یہاں رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، یہ لے لو۔ لڑکے نے دوپٹہ لیتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی، جیسے اندھیروں میں چاند نکل آیا ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ زارا، اس نے جواب دیا۔ اور تمہارا؟ لڑکے نے تھوڑا سوچ کر کہا، میرا نام ریان ہے۔ زارا گھر کی طرف چل پڑی، لیکن اس کا دل بار بار پیچھے موڑ کر دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کو جب زارا اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھی تو امینہ بیگم نے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ بیٹا، آج کچھ ہوا ہے؟ تیرا چہرہ کچھ الگ لگ رہا ہے۔ زارا نے بس اتنا کہا، اماں آج کسی انجان کی مدد کی، شاید اللہ نے مجھے اسی لیے اس گلی سے گزارا۔ امینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دعا دی، بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کی نیت سے ہوتی ہے، جو بھی کرو دل سے کرو۔ اس رات زارا نے سوچا، کیا سچ میں انسان کی نیت اس کی قسمت بدل سکتی ہے؟ اس نے اپنی ماں کی بات کو دل سے لگا لیا اور سوچ لیا کہ چاہے زندگی کتنی بھی مشکل ہو، وہ کبھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگلی صبح زارا پھر اسی گلی سے گزری۔ ریان وہیں بیٹھا تھا، لیکن اس بار اس کی آنکھوں میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن تھی۔ زارا، تم واپس آ گئیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے لگا تمہیں ابھی بھی مدد کی ضرورت ہوگی، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، زارا، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے، لیکن شاید تم یقین نہ کرو۔ بتاؤ، زارا نے اطمینان سے کہا۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں، لیکن میں برا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی دنیا سے نکال دیا گیا ہے کیونکہ میں نے ایک بوڑھے انسان کو ظالموں سے بچایا تھا۔ جنوں کے قانون کے مطابق جن صرف اپنی دنیا کی مدد کر سکتے ہیں، انسانوں کی نہیں۔ زارا پہلے تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔
उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन फिर इसने रेयान की आंखों में देखा। वहां कोई धोखा नहीं था, सिर्फ एक सच्चा दर्द था। ज़ारा ने सोचा अगर ये जिन भी है तो भी ये अकेला है। अकेला इंसान हो या जिन, दोनों को मदद की जरूरत होती है। उसने कहा, रेयान मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चाहे तुम इंसान हो या जिन। रेयान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझ पर भरोसा किया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो दिल से अच्छा हो इससे डर कैसा। इस दिन के बाद रेयान और ज़ारा की दोस्ती शुरू हो गई। ज़ारा ने रेयान को अपनी माँ से मिलवाया और अमीना बेगम ने भी रेयान को अपने बेटे की तरह अपना लिया। रेयान बस्ती में रहने लगा। वो बच्चों के साथ खेलता, उन्हें अजीब अजीब कहानियां सुनाता जिन्नों की दुनिया की। बच्चे इसके गिर्द जमा हो जाते और घंटों उसकी बातें सुनते। रेयान की कुछ बातें बहुत अजीब होती थीं। वो अक्सर ज़ारा से पूछता, ज़ारा तुम लोग रात को सो क्यों जाते हो? क्या सपने देखना जरूरी है? अब इंसान दुख से इतना डरते क्यों हैं, जब दुख ही उन्हें मजबूत बनाता है? ज़ारा इन सवालों पर हंसती और कहती, रेयान तुम एक अजीब जिन हो। रेयान भी हंसता और कहता, और तुम एक अजीब इंसान हो। इन दोनों की दोस्ती में एक खास बात थी, वो एक दूसरे से बिल्कुल सच बोलते थे, कोई छुपाव नहीं, कोई दिखावा नहीं। कुछ हफ्तों बाद बस्ती में एक बड़ी मुसीबत आई। एक अमीर जमींदार ने पूरी बस्ती को खरीदना चाहा। उसने कहा, जो लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। लोग खौफ से कांप रहे थे, बच्चे रो रहे थे और बूढ़े सर पकड़कर बैठ गए थे। रेयान ने ज़ारा से कहा, ज़ारा मेरी ताकत का एक हिस्सा अभी भी सोई हुई है। ये तभी जागेगी जब कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी चीज बगैर किसी लालच के कुर्बान करे। ज़ारा ने पूछा, क्या चीज? रेयान ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारे दिल को खुद समझना होगा। ज़ारा ने आंखें बंद की। इसके जहन में आया कि इसने बरसों से पैसे जमा किए थे माँ के लिए नई सिलाई मशीन खरीदने के लिए। ये इसकी सबसे बड़ी खुशी थी, इसका सबसे प्यारा सपना। उसने आंखें खोली और कहा, रेयान मैं अपनी तमाम जमा पूंजी बस्ती के लोगों के लिए वकील की फीस पर लगा देती हूँ ताकि ये लोग अदालत में लड़ सकें। रेयान की आंखों में एक नीली चमक आई। उसने अपने हाथ बंद किए और एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर मौजिज़ा हुआ। इस जमींदार के तमाम कागजात गलत निकले अदालत में और बस्ती के लोग बच गए। लोग हैरान थे लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। ज़ारा ने रेयान की तरफ देखा और रेयान की आंखों में शुक्रिया था। इस वाकये के बाद रेयान और ज़ारा के दरमियान एक नई कुर्बत आ गई। अब वो सिर्फ दोस्त नहीं थे बल्कि एक दूसरे के हमराज थे। शाम को छत पर बैठकर सितारे देखना उनका मामूल बन गया था। रेयान सितारों की तरफ इशारा करता और बताता कि जिन्नों की दुनिया कहाँ है, कैसी है, वहाँ भी गरीबी और अमीरी है। ज़ारा ने एक दिन पूछा। हाँ, रेयान ने कहा, लेकिन वहाँ लोग अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। सब कुछ ताकत और हुकूमत के लिए होता है, लेकिन यहाँ तुम लोगों के पास चाहे कुछ ना हो फिर भी तुम्हारे दिल में मोहब्बत और उम्मीद होती है। ये चीज वहाँ नहीं है। ज़ारा ने सोचा, क्या रेयान को अपनी दुनिया की याद आती है? उसने पूछा, रेयान क्या तुम्हें अपनी दुनिया याद आती है? रेयान ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, पहले आती थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि यहाँ मुझे तुम मिली हो और तुम्हारी दोस्ती ने मुझे वो सुकून दिया है जो मेरी अपनी दुनिया में कभी नहीं मिला। ज़ारा के दिल में एक अजीब सी हलचल थी लेकिन इसने अपने जज्बात को छुपा लिया। एक दिन बस्ती में एक नई खबर आई। एक बड़ी कंपनी ने बस्ती के करीब एक स्कूल बनाने का ऐलान किया, लेकिन इसके लिए एक जमीन दरकार थी जो ज़ारा की माँ की थी। अमीना बेगम ने कहा, बेटा ये जमीन तेरे अबू की यादगार है, मैं इसे नहीं दे सकती, लेकिन बस्ती के बच्चों को स्कूल की बहुत जरूरत थी। करीब में कोई स्कूल नहीं था और बच्चे बगैर पढ़ाई के बड़े हो रहे थे। रेयान ने ज़ारा से कहा, ज़ारा ये तुम्हारा दूसरा इम्तिहान है, तुम्हें अपनी माँ की यादगार या बस्ती के बच्चों के मुस्तकबिल में से एक चुनना होगा। ज़ारा के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल था। उसने रात भर सोचा, अपनी माँ से बात की। माँ की आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में नेकी का जज्बा भी था। आखिर अमीना बेगम ने खुद कहा, बेटा तेरे अबू ने हमेशा दूसरों की भलाई को अपनी खुशी पर तरजीह दी। अगर हम ये जमीन उन बच्चों के लिए दे दें तो शायद तेरे अबू की रूह को सुकून मिले। अगली सुबह ज़ारा ने मुस्कुराते हुए जमीन देने का फैसला किया।
इस पिल रेयान की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने कहा, ज़ारा तुमने साबित कर दिया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी कुर्बानी है। अल्लाह का करम देखो, कंपनी ने न सिर्फ स्कूल बनाया बल्कि अमीना बेगम को उसके बदले एक नया और बेहतर मकान भी दिया। ज़ारा का सपना पूरा हो गया था, लेकिन उसकी अपनी कोशिश से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से। एक रात छत पर बैठे हुए रेयान ने ज़ारा से कहा, ज़ारा मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। ज़ारा ने इसकी तरफ देखा। तुमने मुझे इंसानियत का असल मतलब समझाया। तुम्हारी हर कुर्बानी, हर मुस्कुराहट ने मुझे सिखाया कि असल ताकत मोहब्बत में है। मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। ज़ारा की आंखें भर आईं। उसने कहा, रेयान में भी यही महसूस करती हूँ, लेकिन हम दो अलग दुनियाओं के हैं। रेयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और शायद इसीलिए हमारी दोस्ती इतनी खास है, क्योंकि ये मोहब्बत बगैर किसी लालच के है, बगैर किसी शर्त के। एक सुबह रेयान ने ज़ारा को बुलाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ज़ारा, वक्त आ गया है। ज़ारा का दिल डूब गया। क्या मतलब? मेरी पूरी ताकत वापस आ गई है। अब मुझे अपनी दुनिया वापस जाना होगा, लेकिन मैं सिर्फ तभी जा सकता हूं जब तुम मुझे दिल से आजाद कर दो। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा भरोसा मुझे यहां बांध कर रखता है। ज़ारा के लिए यह सबसे मुश्किल लम्हा था। रेयान इसका सबसे करीबी दोस्त था, उसकी जिंदगी की रोशनी था। इस रात ज़ारा ने अपनी माँ से बात की। अमीना बेगम ने कहा, बेटा, सच्ची मोहब्बत आजादी देती है, रोकती नहीं। अगर रेयान की खुशी उसकी अपनी दुनिया में है तो उसे जाने दो। अल्लाह हर किसी को इसकी मंजिल देता है। अगली सुबह ज़ारा ने आंसू पोंछे मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई और रेयान के पास गई। रेयान, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, तुम अपनी दुनिया जाओ। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि देने का भी है। तुम्हारी दोस्ती ने मेरी जिंदगी बदल दी। जाओ और अपनी दुनिया में भी यही रोशनी फैलाओ। रेयान की आंखों में आंसू थे। उसने ज़ारा का हाथ थामा और कहा, ज़ारा, तुमने मुझे इंसानियत का असल मतलब समझाया। मैं अपनी दुनिया में जाकर वहां भी यही तब्दीली लाऊंगा। तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक नीली रोशनी का गोला रेयान के चारों तरफ घूम गया। हुआ तेज चलने लगी। रेयान आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी में खो गया, लेकिन जाते जाते इसकी आवाज आई, ज़ारा, तुम्हारी मुस्कुराहट हमेशा मेरे साथ है। रेयान के जाने के बाद बस्ती में एक नई खामोशी थी, लेकिन ज़ारा के दिल में एक नई रोशनी थी। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर बस्ती में एक छोटा सा मदद का मरकज खोला, जहाँ गरीबों को बगैर पैसों के खाना, कपड़े और जरूरत की चीजें मिलती थी। साथ में स्कूल के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन भी दी जाती थी। लोग कहते, ज़ारा का दिल सबसे बड़ा है, इसने अपनी खुशी सब पर लिटा दी। दुकान के बाहर ज़ारा ने लिखा था, अगर तुम्हें मदद चाहिए यहाँ आ जाओ। यहाँ सिर्फ इंसानियत का रंग है, न जात, न पैसे, न भेदभाव। रात को जब ज़ारा छत पर बैठती और सितारों की तरफ देखती तो उसे लगता जैसे रेयान की सब्ज आंखें कहीं से मुस्कुरा रही हैं। एक रात उसने आंखें बंद की तो उसे रेयान की आवाज सुनाई दी, ज़ारा, तुमने अपनी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। मैंने अपनी दुनिया में भी वो तब्दीली शुरू कर दी है जो तुमने मुझे सिखाई थी। दो दुनियाओं के दरमियान तुम्हारी मोहब्बत और इंसानियत का पिल बन गया है। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने दिल से दुआ की, ये अल्लाह रेयान को उसकी मंजिल दे जैसे तूने मुझे मेरी मंजिल दी। मोहब्बत और इंसानियत का रंग सबसे गहरा होता है। जब इंसान बगैर किसी लालच के देता है तो अल्लाह उसे वो चीजें देता है जिनकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सच्ची दोस्ती दो दुनियाओं के दरमियान भी पिल बना सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल SK नूर वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।